Hello everybody, Jai Shri Sitaram and welcome back to UPSC and Life. So after a long break, I am back and I don't even remember the date when did I film these video clips, but I had these in the backup, so I decided to use them in today's vlog. And life has been tough these days. There was a lot of turmoil and a lot of chaos going on. Throughout this phase, I was just focusing on one day at a time because I didn't want to pressurize myself into filming a vlog or filming whatever I was dealing with. And I wanted to express my feelings sometimes, but I was not comfortable expressing it on a vlog. So, coming to the point, what happened was my father had to undergo a pacemaker implantation surgery. He was facing some breathing issues while lying down since 2 3 days, and we were confused about what was happening. And because of the festivities, the holy time that was there, many of the doctors were not available. He was already a heart patient. He got an angioplasty done in 2021, and since then we have been very scared of any health issue that he faces. And this pacemaker one was unexpected because we knew he had some blockages in arteries, but there is some problem in the valve and the heartbeats were missing. This was new to us, and everything was just a shocker for all of us. Nevertheless, the God has been kind, and the surgery went well. It took 4.5 hours um, of him being in the OT, and the surgery went well. Everything was good, everything was fine. He came out smiling from the OT, but after 7 8 hours of the operation, he again got critical. Something reacted, or I don't know what happened. He again started facing some breathing issues. He was again shifted to ICU from general ward. From the post OT ward, he was shifted to ICU. And that night, I tell you, that night was like so tough for all of us. We were counting every minute, and his vitals were not good that night. His BB shot up, SpO2 levels were down, and pulse rate was obviously down, and things were not good that night. But touch wood, by God's grace, everything got normalized by the morning. Throughout the night, he was being given a lot of injections and everything, but touch wood, he got normal by the next morning. We were relaxed, and then he got discharged after 2 3 days, and now we are back home and doing good. So that was the reason for my absence. And now that we were back home, but I couldn't study properly because it takes time. After a long break, and after you have gone through so much of emotions and so much of physical exertion, it takes time to come back to that daily routine that you were following. And not even about the daily routine, the study routine that you were following. It takes time to come back to it. Your body needs some rest, and your mind also needs some rest. And more than rest, I needed some peace, कि मैं बहुत ज़्यादा सोच नहीं रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं हूँ, क्योंकि हर दिन इतना ज़्यादा एक्सर्शन, इतना ज़्यादा chaos में बीतता था कि आई वॉज़ लाइक आई नीड सम पीस, आई नीड सम टाइम फॉर माई सेल्फ, कि मुझे कुछ भी सोचना नहीं है, मुझे कुछ भी करना नहीं है. And
उसकी वजह से भी लास्ट 15 days were like this only, and but now finally I'm back to that routine, and sometimes I do feel that I'm lacking behind because मेरे उधर 15 days एक घर में शादी थी उसमें चले गए, एंड देन उसके बाद ये पापा की सर्जरी, इसमें काफ़ी सारा टाइम चला गया, एंड उस टाइम का बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करा होगा, बट आई फ़ील समटाइम्स मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं ना, आई एम नॉट दैट गिव अप टाइप ऑफ पर्सन, मैं बहुत जल्दी गिव अप करती नहीं हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा सिंपैथी टाइप की लड़की भी नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है अटेंशन सीक करना और बहुत ज़्यादा लोगों से सिंपैथी लेना। मैंने बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में फ़ेस करे हैं, एंड उसकी वजह से ही शायद आई एम नाउ दैट मच स्ट्रॉन्ग एज़ अ पर्सन कि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें पैनिक नहीं करती हैं। मैं बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लेने में, चैलेंजेस को अच्छे से क्रॉस करने में बिलीव करती हूँ, और मैं अपने आप पे भी बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि आई एम दैट टफ़ कि कोई भी चीज़ मुझे ब्रेक नहीं कर सकती है, एंड दो आई एम लैकिंग बिहाइंड बट आई नो आई हैव दैट पोटेंशियल कि मैं ये सब कवर कर लूँगी, एंड आई वांट टू मेक दिस ईयर अ ईयर फॉर माई सेल्फ जिसमें मैं अपना पूरा 100% 1000% पोटेंशियल पे काम करूँ। स्टार्टिंग ईयर का थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा है, बट आई नो आई कैन डू इट, एंड आई विल डू इट फॉर श्योर। इस पूरे फ़ेज़ में देयर हैव बीन पीपल जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, मेरी फैमिली का, मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि हर हमारे टर्मोइल में ही इज़ देयर लाइक अ पिलर फॉर मी, कि वो मतलब लाइक मैं कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में, आई नो ही इज़ देयर, और वो सब संभाल लेते हैं। एंड ऑल्सो माई फैमिली मेम्बर्स, मेरे चाचा हैं, चाची हैं, दादी बाबा हैं, बहुत सारे लोग हैं, बुआ हैं मेरी, हु इज़ लाइक अ सिस्टर फॉर मी, एंड एल्डर सिस्टर फॉर मी, वो भी मेरे बचपन से मेरे साथ हैं, एंड मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, एंड दैट इज़ वाई उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रेंथ दी इस टफ़ सिचुएशन में। दो देखो, ये हर रिलेशनशिप में अप डाउन्स चलते हैं, वो हर आपके कोई भी रिलेशंस होंगे फैमिली में, उसमें अप डाउन होते हैं, बट अगर टफ़ टाइम पे वो साथ हैं, दैट मीन्स दे आर देयर, और यही आपके रियल एसेट्स होते हैं लाइफ के, एक अंकल आंटी हैं मेरे, एंड ऑल ऑफ दीज पीपल दे आर लाइक दोज स्टैंडिंग पिलर्स जिन पे आप कभी भी लीन कर सकते हो, एंड आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होगे, एंड यही सब रीज़न्स हैं कि इतने टफ़ टफ़ सिचुएशंस हम लोग बहुत आसानी से क्रॉस कर लेते हैं। मेरे मन में बहुत ग्रैटिट्यूड है भगवान के लिए, क्योंकि दो मैंने एक बहुत ही टफ़ सिचुएशन फेस करी थी 2024 में, बट आई नो वट एवर हैपन्स फॉर गुड। पता नहीं उस सिचुएशन के बारे में मैं ये बोल नहीं पाती हूँ। दैट वॉज पासिंग अवे ऑफ माई यंगर ब्रदर, मेरा सिबलिंग, एंड I don't know that happened for good or for bad, but that did happen, and I did cross that phase also, and I'm dealing with that also, but I think I am now that stable कि मैं उस चीज़ के साथ डील करते करते अपने लाइफ को आगे प्रोग्रेस कर पा रही हूँ। आई डोंट नो कितने लोग मेरा ये व्लॉग देखने वाले हैं, बट जितने भी देखने वाले हैं, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट यू डू हैव टू बिकम दैट टफ एज अ पर्सन कि कोई भी हर्डल आपको ब्रेक ना कर पाए। वेन एवर यू आर गोइंग थ्रू अ टफ सिचुएशन, जस्ट थिंक दैट इट इज़ गोइंग टू बी ओके एट दी एंड, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड फिर आप अपने उस टारगेट को भी अचीव कर लोगे जो आपने सोचा हुआ है अपने लिए, क्योंकि सबकी लाइफ स्मूथ नहीं होती है, सबकी लाइफ में बहुत डिफरेंट तरह के हर्डल्स होते हैं, एंड मेरी लाइफ में भी बहुत अलग अलग तरह के हर्डल्स हैं, और अभी इस पीक टाइम पे आ रहे हैं जिस टाइम पे नहीं आने चाहिए, बट ठीक है, वो मेरे भाग्य में है, एंड आई एम ओके विद इट। मैं उसके बाद भी मेहनत करने को रेडी हूँ। सो दिस इज़ ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर इन दिस व्लॉग, एंड लास्ट में बस मैं इतना कहूँगी कि अपनी फैमिली पे बर्डन बनने की बजाय, टफ़ सिचुएशंस में रोने की बजाय, इतने स्ट्रॉन्ग पिलर बनो आप उनके लिए कि बाकी सब परेशान हो और आप सबको संभाल लो।
मैं उसमें बिलीव करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करने में, सीन क्रिएट करने में, रोने में एंड रोना इज़ नॉट वीकनेस बट ऑब्वियसली टफ सिचुएशंस पे आपको अपनी फैमिली को सँभालना होता है। सो प्लीज़ डू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड दैट इज़ ऑल दैट आई वांटेड टू से। So thank you so much for watching. Jai Shri Sitaram and all the best.